Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 1 of Business Communications. What is communication? Topics to be covered in this session are characteristics of communication, communication model, elements of communication, barriers to communication, how to overcome barriers to communication, and reasons for importance of workplace communication. So first of all, we'll start with characteristics of communication. I would like to describe actually what is communication. Communication is a non-stop process and is a vital ingredient for success, both within and outside the workplace. It is a part of soft skills as opposed to domain or technical knowledge, which is a part of hard skills. A formal study of business communication is very important since the average business executive today spends a good a good part of his time on the job communicating in some part or the other. So in this session we'll study how communication involves certain key elements no matter in what context it takes place. So we'll learn about communication and its various characteristics along with the importance of communication in the workplace. According to Newman and Summer, they say communication is an exchange of facts, ideas, opinions, or emotions by two or more persons. To make it simpler for you, it is a transfer of information. एक इंसान से जब दूसरे इंसान तक जब ट्रांसफ़र होता है information का, it results in common understanding between them. So we can say it is a sum of all the things one person does when he wants to create an understanding in the mind of another. A communion by words, letters, symbols, or messages as a way that one organization member shares meaning with the other. This is called as communication. If you'll study about its various characteristics, जैसा कि मैंने बताया communication जो है transmission है किसी information, ideas, emotions, skills by the use of symbols, words, pictures, figures, graph, etc. This is the act or process of transmission that is usually called communication. From these definitions, I think it is clear that communication has these characteristics. We'll discuss them in detail. Like it is unavoidable and unintentional. यानी कि हम चाह कर भी इसे अवॉइड नहीं कर सकते और हम बहुत ही अनइंटेंशनल रहती हैं. हम अपने इंटेंशन से कभी भी ये नहीं करते हैं. लाइक इट इज़ इम्पॉसिबल टू नॉट कम्युनिकेट. हम ऐसा नहीं हो सकता. इट इज़ टोटली इम्पॉसिबल फॉर अस कि हम कुछ भी कम्युनिकेट ना करें. सिंस वी कम्युनिकेट अनइंटेंशनली ऑल द टाइम इवन विदाउट द यूज़ ऑफ वर्ड्स. कई बार आप किसी से बात नहीं करना चाहते, वहाँ आप वर्ड्स का तो यूजेज स्टॉप कर सकते हैं या उसे रोक सकते हैं, बट आर बॉडी लैंग्वेज, द वे वी ड्रेस, द इम्पॉर्टेंस वी गिव टू अराइविंग ऑन टाइम, बिहेवियर, फिजिकल एनवायरनमेंट, दे ऑल कन्वे सर्टेन मैसेजेस टू others and it is a two-way exchange of information. कम्युनिकेशन शेयरिंग है इन्फॉर्मेशन की बिटवीन दो या दो से ज़्यादा लोगों के विद कॉन्टीन्यूस फीडबैक एंड इट इज़ अ प्रोसेस. हर एक मैसेज जो है वो एक पार्ट होता है ऑफ अ प्रोसेस एंड डज नॉट अकर इन आइसोलेशन. दिस मीन्स दैट द मीनिंग अटैच टू अ मैसेज depends on what has happened before or on the present context. Like your boss response to your request for a promotion will depend on your past relationship with him as well as his mood at that particular time. इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स सेंडर एंड रिसीवर. यानी कि कोई भी कम्युनिकेशन तभी स्टार्ट हो सकता है जब उसमें एक सेंडर हो और इसके लिए एक रिसीवर भी चाहिए who will attach some meaning to that message. It could be verbal and non-verbal. Communication could be through the use of words. ये words के थ्रू भी हो सकता है in spoken or written form or through the use of body language such as gestures and facial expressions. It is successful and only successful when the receiver interprets the meaning in the same way as that intended by the sender. अगर ये कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल हो पाता है जब रिसीवर उसे वैसे ही मीनिंग से इंटरप्रेट करता है जिस तरीके से सेंडर ने उसे भेजा है. द रिसीवर डज नॉट ऑलवेज अटैच द सेम मीनिंग टू अ मैसेज एज अ सेंडर. व्हेन द मैसेज इज रॉन्गली इंटरप्रेटेड द कम्युनिकेशन इज अ फेलियर. This may be due to several reasons that we'll study in this session, but if when the message is wrongly interpreted, that means communication is a failure in this case. So this is, you can see, communication model in which you can see sender or encoder, messages, receiver or decoder,
सेंडर इज अ पर्सन हु ट्रांसमिट्स द मैसेज, तो वो भेज रहा है, आप देख सकते हैं, सेंड्स द मैसेजेस. एंड रिसीवर इज अ पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज, जो किसी चैनल के थ्रू, चैनल इज मीडियम, के थ्रू अपना मैसेज भेजेंगे. और बीच में नॉइज आ जाती है. नॉइज के बारे में आपको बताऊंगी, फैक्टर्स दैट डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन. वी विल डिस्कस देम इन डिटेल हेयर. सेंडर जैसा मैंने आपको बताया, द पर्सन हु ट्रांसमिट्स अ मैसेज. फॉर एग्जाम्पल, अ मैनेजर इज राइटिंग अ लेटर ऑफ अपॉलजी टू अ कस्टमर रिगार्डिंग अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट. इन दैट केस मैनेजर इज कॉल्ड सेंडर हेयर. रिसीवर और डी कोडर की अगर बात करें, तो वो इंसान जो डी कोड करता है या नोटिस करता है या इंटरप्रेट करता है मैसेज को, और अटैचेस सम मीनिंग टू अ मैसेज. Decoding may not always be accurate, and a wrong message or meaning may be attached to that message. For example, a friendly joke might be taken as an offense, or feedback given to a subordinate by a superior might be taken in the wrong sense. Message is the actual signal that triggers the response of the रिसीवर. मैसेज इंटेंशनल भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप सेल्स प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इन दैट केस योर मैसेज इज इंटेंशनल. वहीं अनइंटेंशनल भी हो सकते हैं, लाइक इफ़ यू आर अटेंडिंग सम लेक्चर एंड इन दैट केस इफ यू यॉन, दैट कन्वेज अ मैसेज ऑफ बोर्डम, सो यू आर गिविंग दैट सिग्नल अनइंटेंशनली. इन दैट केस नॉन वर्बल सिग्नल्स ऑल्सो गिव मैसेजेस. चैनल, मीडियम यूज टू डिलीवर मैसेज. जिस मीडियम या माध्यम का हम यूज़ करते हैं मैसेज को डिलीवर करने के लिए, दैट्स कॉल्ड चैनल. एज अ बिजनेस एग्जीक्यूटिव यू विल often have a choice of channels. For example, you could communicate with the customer through a letter, through email, or telephone. Feedback, that is response to sender's message, because communication is a two-way process. Receivers generally respond to messages. For example, student may ask questions during a lecture session. An employer may tell an employee that he has to think about his proposal. This response to a sender's message is called feedback. This kind of feedback is oral. Sometimes feedback could also be written, as when you respond to a customer's letter of complaint. For example, at other times feedback could be non-verbal also, like smiles, nod of appreciations during a talk of presentation. Next is noise. Noise are factors that interfere with communication, जो कभी भी communication को fail करते हैं, when the message received is not identical to the message that is sent. Several factors interfere with the exchange of messages. Noise refer to all these factors that disrupt the communication and could be classified under the following types. In this physical noise, जिसमें हम कह सकते हैं distracting sounds, poor acoustics, just information overload could interfere with the listening process. फिजियोलॉजिकल नॉइज, जिसमें हम हेयरिंग या और डिसेबिलिटीज़ जैसे कि फटीग है या फिजिकल इलनेस है, could come in the way of both speaking and listening. और साइकोलॉजिकल नॉइज की बात करें तो समटाइम्स इमोशंस विद इन द सेंडर और रिसीवर, जैसे कि preoccupations या fear or lack of interest could interfere with the speaking or listening process. So these are few noises that interfere with the communication, and these are called noise. Another important thing in the process of communication is context. Context is the setting in which the communication takes place and could sometimes determine the सक्सेस और फेलियर ऑफ द कम्युनिकेशन. कंटेक्स्ट पे भी बहुत बार डिपेंड रहता है हमारा सक्सेस या फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें से फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट है फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, दैट इज़ फिजिकल सराउंडिंग्स, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, बहुत शोर मच रहा है या किस तरीके का एनवायरनमेंट है. Like your boss is at the party or over lunch at a restaurant, and at that place if you ask for promotion, that is wrong. So physical context wrong हो गया, environment गलत हो गया, तो कई बार इससे भी मैसेज हमारा फेल हो जाता है. नेक्स्ट इज सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि आपकी रिलेशनशिप कैसे हैं बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर. Like if you are asking for promotion to your boss, is likely to be received differently depending on how well you get along with your boss and whether you are personal friends or not. Chronological context में time related factors that could influence the communication. For example, is your request made first thing in the morning or at the
fag end of the day? Is it made during or after work hours? Is it made at a time when the company is going through problems such as strike in the factory or major losses? सो टाइम भी बहुत डिपेंड करता है कि अगर कंपनी आपकी लॉस में चल रही है और बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स चल रही हैं और इन दैट केस यू आर आस्किंग फॉर प्रमोशन, तो आपका एक जो कम्युनिकेशन है वो फेल भी हो सकता है. कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो बैकग्राउंड ऑफ सेंडर एंड रिसीवर, जहाँ पर बहुत मैटर करता है, जैसे कि एज, लैंग्वेज, नेशनैलिटी, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा. दीज फैक्टर्स कुड इन्फ्लुएंस द कम्युनिकेशन फेवरेबली और इनफेवरेबली. बैरियर्स जो कम्युनिकेशन में अगर हम बात करें, बैरियर्स मीन्स जो कम्युनिकेशन के रास्ते में जिसके बारे में मैंने आपको नॉइज़ कहकर बताया कि द फैक्टर्स दैट डिस्टर्ब कम्युनिकेशन. There are many barriers to communication and understanding and analysis of which are needed before coming up with the ways to eliminate or minimize them. इनको कम करने से पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि actually barriers हैं क्या. First is environmental barriers. This is same as physical noise, which could be in the form of distracting sounds, an overcrowded room, poor facilities or acoustics, all of which may hinder the ability to listen to and understand the message. तो environmental factors, environmental barriers वो होते हैं जिसमें physical noise, बहुत overcrowded room है या facilities या acoustics की वजह से जो problem है उसकी वजह से भी कई बार मैसेज फेल हो जाता है, क्योंकि सेंडर ने जो मैसेज दिया वो उस तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया जाता रिसीवर द्वारा. इंडिविजुअल बैरियर, इट इज़ अनदर मेजर बैरियर टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, बिकॉज हर एक इंसान की अपनी सोचने की क्षमता होती है. देर इज़ वन वे ऑफ देर इज़ अ टेंडेंसी टू जज, इवैल्यूएट, अप्रूव और डिसअप्रूव ऑफ द व्यूज़ ऑफ अनदर पर्सन. दिस हैपन्स पर्टिकुलरली इन सिचुएशंस वेयर वी हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अबाउट समथिंग. In such cases, we tend to block out the communication and form our own viewpoints. तब भी कई बार हम किसी को गलत ले लेते हैं बिकॉज ऑफ आर ओन जजमेंट. अपने इवैल्यूएशन के द्वारा हम कई बार कई चीज़ों को गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ये तो मोस्ट प्रॉब्ली ऑर्गेनाइजेशन में ही हमें मिलता है इस तरीके का बैरियर, क्योंकि मैसेज जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स. अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से जब तक वो जब वो बात फैलती है या एक जगह से दूसरे लेयर्स में, मल्टीपल लेयर्स में जब वो पास थ्रू होकर मैनी लेवल्स तक बिफोर दे फाइनली रीच द रिसीवर, इट हैज़ देर आर मैनी हायरार्कीज एक्चुअली इन ऑर्गेनाइजेशन. तो वहाँ पर जब मल्टीपल लेयर्स से मैसेज होकर जाता है तो कई बार रिसीवर तक पहुँचते इट चेंजेस, the whole thing changes. Each level may add to, modify or completely change the message. So much so that it becomes distorted by the time it reaches the intended receiver. In other words, there is likely to be loss of meaning and the message may not reach the receiver in the same way as it was intended by the sender. नेक्स्ट इज चैनल बैरियर, यानी कि हम गलत चॉइस कर लेते हैं चैनल की. रॉन्ग चॉइस ऑफ चैनल इज अनदर बैरियर. यूजिंग अ रॉन्ग मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग और कन्वेइंग अ मैसेज ओरली व्हेन अ रिटन लेटर इज रिक्वायर्ड. these are some examples for channel barrier. अगर आप कोई अल्कोहल की एड एक रिलीजियस मैगजीन में दे देते हैं बिकॉज नाउ हेयर यू आर यूजिंग रॉन्ग चॉइस ऑफ चैनल, तो वहाँ पर भी आपका मैसेज गलत इंटरप्रेट किया जाता है. लिंग्विस्टिक बैरियर या कल्चरल बैरियर जो है, लिंग्विस्टिक बैरियर में लैंग्वेज का डिफरेंस होने की वजह से व्हेन द सेंडर ऑफ द मैसेज यूजेस अ लैंग्वेज दैट इज़ फॉरेन टू द रिसीवर, या फिर रिसीवर उसे नहीं समझ पा रहा है या बहुत ज़्यादा हाईली टेक्निकल है लैंग्वेज, तो इस वजह से भी फॉरेन लैंग्वेज हो या टेक्निकल लैंग्वेज हो तो कई बार रिसीवर उसे समझ नहीं पाता है, तो यहाँ पर भी एक वो बैरियर बन जाता है. कल्चरल बैरियर्स, कल्चरल वैल्यूज़ में डिफरेंस होने की वजह से भी कई बार समझ में नहीं आ पाती हैं बातें या गलत इंटरप्रेट कर ली जाती हैं. Cultural differences refer to differences in values and perceptions which may affect the interpretation of the message by the receiver. For example, a joke about women may be taken in the wrong sense if the receiver belongs to a culture where women are highly respected. Semantic barriers की बात करें तो different words may have different meanings in different cultures. Failure to take this into consideration could lead to serious blunders. कई बार एक ही word के कई meanings हो जाने की वजह से और differences हो जाने की वजह से हम बात को नहीं सही तरीके से समझ पाते हैं. कई बार नॉन वर्बल बैरियर्स भी एक बहुत बड़ा बैरियर है कम्युनिकेशन के लिए. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो टोन ऑफ वॉइस जो हम वर्ड्स के थ्रू नहीं करते हैं और फिर भी मैसेज चला जाता है, लाइक टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज,
जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है. एंड इफ द टोन ऑफ वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज आर नेगेटिव, द कम्युनिकेशन विल फेल. हाउ एवर पॉजिटिव द स्पोकन एंड रिटन मैसेजेस आर. आपका जो रिटन मैसेज है, स्पोकन मैसेज है, वो कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस नेगेटिव है तो आपका कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा. इफ़ यू हैपन टू मीट अ लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड एंड से आई एम डिलाइटेड टू मीट यू, but in a sad tone of voice, the exact opposite message will be conveyed. Overcoming the barriers of communication. इनको हम overcome कैसे कर सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल एक्शन के बारे में पूछें तो हमें फीडबैक encourage करना चाहिए, बिकॉज फीडबैक से मैनेजर्स को ये पता चल पाएगा कि मैसेज जो है वो सही तरीके से इंटेंड किया गया है या नहीं किया गया है. और एक क्लाइमेट ऑफ ओपननेस, ट्रस्ट क्रिएट करना चाहिए इन विद, बिकॉज इट गोज अ लॉन्ग वे इन रिमूविंग ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. जूनियर एम्प्लॉयज़ या सबॉर्डिनेट्स को अपने ओपिनियंस जो है वो एयर करने के लिए अलाउ करना चाहिए, एंड डिफरेंसेस विदाउट बीइंग ऑफ fear of being penalized. और मल्टीपल चैनल्स यूज़ करने चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन शुड encourage the use of multiple channels of organization of communication in order to make sure the messages reach the intended receiver without fail. This means using a combination of both oral and written communications, written channels, formal and informal official channels of communication. This type of channels, we'll discuss them in detail in the next session, but we must use different types of multiple channels in order to communicate the message well. इंडिविजुअल एक्शन की बात करें तो ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है. एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी है. लिसनिंग टू द मीनिंग ऑफ द स्पीकर्स वर्ड्स रादर देन लिसनिंग विदाउट हेयरिंग. पैसिव लिसनिंग भी एक बहुत बड़ा बैरियर है, तो हमें इसे ओवरकम करने के लिए एक एक्टिव लिसनिंग अपनाना चाहिए. केयरफुल वर्डिंग ऑफ मैसेज को ठीक तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए. केयरफुल वर्डिंग करनी चाहिए. मैसेज शुड बी वर्डेड क्लियरली एंड विदाउट एम्बिग्यूटी टू मेक श्योर दैट द मैसेज दैट इज रिसीव्ड इज सेम एज दैट बीइंग सेंट. Selection of appropriate channels. Individuals should be competent enough to choose the right communication channel depending on the situation. Channels of communication and the criteria for selection of channels is very much required for the appropriate message to be sent. नाउ रीजन्स फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्या है, क्योंकि आज जहाँ कम्युनिकेशन एक नर्व सेंटर बन गया है बिजनेस का, जैसे जैसे हम कॉर्पोरेट लैडर पे ऊपर जाएंगे तो हम ये देख पाएंगे कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें कम्युनिकेशन स्किल्स की, इवन मोर दैन technical skills. Communication research has revealed that among the factors most important for managerial success, communication skills rank above टेक्निकल स्किल्स. तो सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो आज हार्ड स्किल्स से ज़्यादा ऊपर हायर रैंक किए जाते हैं. कुछ सर्वेज़ के अकॉर्डिंगली ये देखा गया है कि जो लोग बहुत सक्सेसफुल रहे हैं अपने प्रोफेशन में, दे हैव इंडिकेटेड दैट कम्युनिकेशन स्किल्स आर मोर वाइटल टू जॉब सक्सेस दैन सब्जेक्ट्स टेकन इन कॉलेज. सो कम्युनिकेशन आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक ग्रेटर इम्पॉर्टेंस इसने अटेन कर ली है, अज्यूम कर ली है, क्योंकि नए बिजनेस के आजकल मॉडल में टीम वर्क बहुत ज़रूरी है इंडिविजुअल एक्शन से. तो टीम वर्क के लिए भी हमें ग्रेटर कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है. कम्युनिकेशन हमें टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए भी चाहिए. कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड ऑल द मोर इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी. विदाउट कम्युनिकेशन एंड ह्यूमन स्किल्स, technology will overwhelm an organization. Communication helps to make sense of technology and to manage all this information. For example, communication is required to explain a new computer program or software. Communication की तो वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी जब एक नया टेक्निकल स्किल आया है या फिर कोई नया सॉफ्टवेयर आया है, कोई प्रोग्राम आया है, तो वहाँ पर भी उसे समझाने के लिए आपको कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी. कंप्यूटर्स आपके सारे रूटीन टास्क कर सकता है. जॉब्स लाइक रिस्पॉन्डिंग टू कस्टमर्स नीड्स रिक्वायर अ हायर डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स इसीलिए हायर रेट किए जाते हैं दैन हार्ड स्किल्स, क्योंकि कंप्यूटर आपके सारे रूटीन टास्क तो कर सकता है, लेकिन कस्टमर की नीड्स पूरी करना या उनको रिस्पॉन्ड करना ये नहीं कर पाएगा. ये इसके लिए आपको बहुत हाई डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स की ही ज़रूरत पड़ेगी. हाउ कम्युनिकेशन इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस. कम्युनिकेशन परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव करता है? फर्स्ट इज़ ग्रेट अवेयरनेस ऑफ टीम वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. यानी कि आपको
टीम वर्क की बहुत ज़रूरत है। जब ओपन कम्युनिकेशन है सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स कोवर्कर्स के बीच में, तो वहाँ पर एक स्मूथ फ्लो होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अटेन कर सके। इसके लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी वेरियस डिपार्टमेंट्स में, और इट लीड्स टू ग्रेटर मोटिवेशन टू वर्क टुगेदर टूवर्ड्स अचीविंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल रादर देन वर्किंग इन आइसोलेशन। बेटर एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप बन पाएंगे इससे, क्योंकि अगर एक दूसरे को एम्पैथी शो करते हैं और गिविंग देम द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस विदाउट फेयर ऑफ बीइंग पीनलाइज्ड और रिप्रेस्ड, मैनेजर कैन क्रिएट एन क्लाइमेट ऑफ ओपननेस दैट लीड्स टू बेटर वर्क रिलेशनशिप्स। तो इम्प्रूव करता है ये वर्क रिलेशनशिप्स को। अनदर थिंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि क्विकर रेजोल्यूशन होता है कॉन्फ्लिक्ट्स का। Effective communication can help resolving conflicts between co-workers, work-related and performance-related problems. Face-to-face communication is especially suited for achieving this task since it is one-to-one and highly personalized in nature. It also improves performances. जैसा मैंने आपको बताया कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैनेजर्स द्वारा एक कंस्ट्रक्टिव रिव्यू बहुत ज़रूरी है, थ्रू विच अ मैनेजर गिव्स पॉजिटिव फीडबैक एंड काउंसल्स द एम्प्लॉय instead of criticizing him of his poor performance, can motivate the employee to perform better. तो more motivation चाहिए होता है परफॉर्म करने के लिए, वहाँ भी कम्युनिकेशन हेल्प करता है, और मैनेजर्स और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में भी एक स्ट्रॉन्गर लिंक बनाता है, जैसे कि गवर्नमेंट है, बैंक्स हैं, मीडिया है, सप्लायर्स हैं, उनके साथ एक गुड रैपो, बेटर रैपो क्रिएट करने के लिए भी हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। मैनेजर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ हिज कस्टमर्स, बी अवेयर ऑफ द presence of quality suppliers and of material of governmental regulations and of the expectations of community at large only and only through proper communication. So here we have understood the what is actually communication and how it is helpful to us and how it leads to performance improvement. And it also the stronger link with external stakeholders is another thing which is important for which is where communication is very important. Now do it yourself for you. हाउ टू ओवरकम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, हम इन बैरियर्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे एक्शन पे हम फीडबैक एंकरेज कर सकते हैं, क्लाइमेट ऑफ ओपननेस क्रिएट कर सकते हैं, ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ताकि सभी एम्प्लॉयज़ को जो है दे शुड बी अलाउड टू एयर देयर ओपिनियंस एंड डिफरेंसेस without the fear of being penalized, and we must use multiple channels of communication ताकि बिना किसी without any fail the message should go in the right direction. And another thing which is very important in at individual level is active listening, जहाँ पर हमें active listening की बहुत ज़रूरत है, because passive listening always leads to failure of communication. Careful wording of message is another important task to be performed, and it is one important strategy to overcome barriers to communication, and selection of appropriate channels in other important strategy or another method to overcome barriers to communication. What are the different elements to communication में हमने पढ़ा कि कौन कौन से elements रहते हैं. Sender which is also known as encoder जो transmit करता है message, receiver या decoder जो notice करता है, decode करता है message, और message that triggers a response of a receiver, channel जो medium रहता है used to deliver the message, feedback response to sender's message, noise जो फैक्टर्स हैं जो डिस्टर्ब करते हैं कम्युनिकेशन, और context the setting in which the communication takes place. So these are the few elements of communication. So I think you are more clear, the view is quite clear to you that what is actually communication and how it leads to better performances, and how can we overcome the barriers that leads to disruptions in the way of communication. We need to improve that, we do need to overcome that, and that's all for this session. By now we will study about the different types and channels of communication, but in the next part of the next session, that is session number 2. That's all for this session by now. Thank you, thanks a lot. Happy learning, we learning.